اس کا گھر آ گیا تھا، گیٹ کھلا ہوا تھا، میں گاڑی سیدھی اندر لے گیا۔ میں نے خالہ سے کہا تھا کہ میں خود چلی جاتی ہوں، مگر انہوں نے خود ہی اصرار کیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ آئیں گے، حالانکہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی زحمت کی۔ گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پتہ نہیں کیوں صفائی پیش کی۔ اس سے پیشتر کہ وہ دروازہ کھول کر اتر جاتی، میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کوئی زحمت نہیں کی، تم میری کزن ہو، اور پہلے بھی تمہیں میں ہی چھوڑ کر آتا تھا، تب تو تم ایسا کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اچانک مشل باہر آئی تھی۔ میں نے ہینڈل سے ہاتھ ہٹا دیا۔ مہرین دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ مشل سیدھی میری طرف آئی تھی۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے میری طرف والا دروازہ کھولا اور مہرین کو مخاطب کیا۔ اچھا کیا مہرین، تم کسی بہانے سے انہیں لے آئیں، ورنہ یہ صاحب تو یہاں آنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ مہرین نے ایک نظر رک کر ہم دونوں کو دیکھا تھا اور پھر کچھ کہے بغیر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب اندر آؤ تم بھی، مشل نے مجھے کہا تھا۔ نہیں یار، مجھے کچھ کام ہے، مجھے واپس جانا ہے، میں 1-2 دن تک چکر لگاؤں گا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے 1-2 دن بعد کے چکر سے، تم ابھی اترو، آخر میں نے بھی دوپہر کے لنچ کا قرض اتارنا ہے۔ اس وقت تو آرام سے چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر اب میں کہیں نہیں جانے دوں گی، اترو نیچے۔ میں اس کی بات رد نہیں کر سکا اور مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میں اندر آ گیا۔ نانی اماں کہاں ہیں؟ میں نے اندر آ کے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، ملنا چاہتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ میں جب نانی کے کمرے میں داخل ہوا تو مہرین وہیں تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ دیکھیں دادی، آج آپ کے نواسے کو زبردستی پکڑ کر لائی ہوں، ورنہ یہ تو آنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ مشل نے جیسے میرا تعارف کروایا تھا۔ میں نانی اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ 1-1.5 ماہ کے لیے تو آتے ہو، اس میں بھی تمہاری شکل دیکھنے کے لیے پیغام بھجوانا پڑتا ہے۔ میں ان کے شکوے پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ نہیں نانی اماں، بس مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے کہ کہیں آنے جانے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بھائی، بہت مصروف ہیں یہ، ہم جیسے فالتو لوگوں سے ملنے کے لیے وقت کہاں سے نکالیں؟ ان سے ملنا ہو تو باقاعدہ اپائنٹمنٹ لینی چاہیے کہ بھائی اگر فرصت ہے تو ہم ایک نظر ہم غریبوں پر بھی۔ مشل کرسی پر جھولتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات پر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ جاؤ مشل، اسود کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے کر آؤ۔ وہ نانی اماں کی ہدایت پر سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ تمہاری ماں آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم اگلے ہفتے جانے والے ہو، نانی اماں نے مجھ سے کہا۔ ہاں، چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں میری، اس لیے۔ اتنی کم چھٹیاں لے کر کیوں آتے ہو؟ نانی، اتنی کم چھٹیاں بھی نہیں ہوتی، 1 ماہ گزار کر جا رہا ہوں، اس سے زیادہ کیا رہوں؟ میں نے تو تمہاری ماں سے کہا تھا اب تمہاری شادی کا سوچیں۔ ماشاءاللہ اب تم اچھا خاصا کمانے لگے ہو، اس قابل ہو گئے ہو کہ بیوی اور بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکو۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے نانی، ابھی تو مجھے آزاد رہنے دے 2-4 سال، پھر دیکھا جائے گا۔ ویسے بھی میں کون سا بوڑھا ہو رہا ہوں؟ تمہاری ماں بھی یہی کہہ رہی تھی، دونوں کا دماغ برابر خراب ہے۔ وہ کچھ خفا سی ہو گئی۔ آپ ناراض نہ ہو، میں سوچوں گا اس بارے میں کچھ۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ پہلے تو آپ خاندان کی لڑکیوں کے بارے میں کچھ سوچیں۔ خاندان میں کون سی ڈھیر لڑکیاں ہیں؟ ابرار کے بچے ہیں تو انہیں تو ابرار کی بیوی اپنے خاندان میں بہانے کا خیال رکھتی ہے، اور اس کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ اصغر اپنی 2 بچیاں بیاہ چکا ہے اور تیسری کی باری آنے میں ابھی دیر ہے۔ باقی رہ گئی مشل تو اس کے لیے رشتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر ہفتے 1-2 رشتے آ جاتے ہیں۔ میں کچھ بے چین ہو گیا تھا۔ کیا ماموں ممانی نے اس کے لیے کچھ سوچا ہے؟ ابھی تک تو نہیں، اکلوتی ہے نا، اس لیے وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم مکمل کر لے، پھر ہی وہ کچھ سوچیں گے، مگر اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اتنے رشتے ہیں کہ انہیں انتخاب کرنے میں بھی دشواری ہوگی، وہ بتا رہی تھیں۔ اور مہرین بھی تو ہے، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ میرے سوال پر نانی اماں کے چہرے پر ایک سایہ سا لہر آیا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب اسے شادی کرنی ہوگی وہ بتا دے گی۔ کیا جتن کر کے میں نے اس کے لیے 1-2 رشتے تلاش کیے تھے، مگر اس نے تو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ بالکل باپ پر گئی ہے، نہ اس میں کوئی لحاظ مروت تھی، نہ اس میں ہے۔ بات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے پال پوس کا جوان کیا ہے، سوچا تھا یتیم ہے، لڑکی ذات ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، مگر کیا پتا تھا کہ جوان ہو کر وہ ایسی بدلحاظ ہو جائے گی۔ بچپن سے یہاں رہتی آئی ہے، یہاں کا کھاتی ہے، مگر اب یہ عالم ہے کہ کسی سے بات کرنا تو ایک طرف، سلام دعا تک کی زحمت گوارا نہیں کرتی۔ کوئی مرے کوئی جیے اس کی بلا سے اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ساری رات کمرے کی لائٹ جلائے پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے۔
इसे तो मेरे पास आकर बैठना भी पसंद नहीं है, हालांकि ये मैं हूँ जिसकी वजह से सब लोग इसे बर्दाश्त किए हुए हैं, वरना तो सब ये चाहते हैं कि इसकी माँ इसे ले जाए और ख़ुद ही इसकी शादी करे। मगर मैंने उनसे कहा है कि जब इतने साल अपने पास रखा है तो फिर 2-4 साल और सही। नानी इसके हाथों काफ़ी तंग थी और उसकी शिकायतें कोई नई बात नहीं थी। आप इसे समझाती क्यों नहीं हैं? क्या समझाऊं मैं उसे, वो अब कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, आखिर मशल भी तो है, इसे कौन समझाता है। इसकी माँ में लाख बुराइयाँ सही, मगर बेटी की तरबियत उसने अच्छी की है। मजाल है कभी किसी को तकलीफ़ पहुँची हो या कभी वो किसी से लड़ी हो। अल्लाह ने सूरत भी खूब दी है और सीरत भी, और यहाँ ये हाल है कि ना सूरत अच्छी है और ना सीरत। और लोग खाली तालीम को नहीं देखते, लड़कियों की गुण देखते हैं। इसमें तो इस किस्म की कोई चीज़ है ही नहीं। महरीन अच्छी है, बहुत अच्छी है दादी, खामोखा ही परेशान रहती हैं। जब इसकी शादी होनी होगी तो पता ही नहीं चलेगा और हो जाएगी, क्योंकि रिश्ते तो आसमानों पर लिखे होते हैं। मशल उसी वक्त अंदर आई थी और उसने दादी के आखिरी जुमलों पर तबसरा किया था। एक ये है, देखो कैसे प्यार से इसका तस्करा करती है, और एक वो है जो कभी मैं मशल का नाम ले लूँ तो आगे लग जाती है उसे। मेरा नाम ही ऐसा है दादी, इसका कोई कसूर नहीं, मशल ने हंसकर कहा था। अब उसका जिक्र छोड़ें और कोई और बात करते हैं। उसने ट्रॉली से चाय के बर्तन टेबल पर रखते हुए कहा। यानी तुम्हारी बात करें? मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मेरे बारे में भी बात हो सकती है। वैसे ये कोई कंपल्शन नहीं है, जिस चीज़ के बारे में चाहें बात करें। उसने चाय का कप थमाते हुए कहा। फिर वाकई बातों का रुख मुड़ गया था। रात का खाना मैंने वहीं खाया था। महरीन के अलावा डाइनिंग टेबल पर सब थे। गपशप करते मैंने इस डिनर को वाकई एंजॉय किया था। खाने के बाद दोबारा चाय का दौर चला था और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मशल की हिस्से मज़ा वाकई बहुत अच्छी थी। वो लतीफ़े सुना रही थी और पूरा लॉन्ग रूम कहकहों से गूंज रहा था। वो बड़ी ज़बरदस्त नक्काल थी। रात को 11 बजे के करीब मैं वापस घर आया था और मेरे दिल दिमाग पर मशल छाई हुई थी। उसके होने से हर चीज़ बहुत मुकम्मल, बहुत रंगीन नज़र आ रही थी। मैं सोने से पहले देर तक उसके बारे में सोचता रहा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कोई रिश्ता वगैरह तलाश कर रहे हैं? अगले दिन हम दोबारा एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। मैंने उससे पूछा, ये अफ़वाह तुमने कहाँ से सुनी? उसने बड़े आराम से जलफ्रेज़ी लेते हुए कहा, नानी अम्मा ने बताया है। वो काफ़ी रिलायबल सोर्सेज हैं तुम्हारे, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये रिश्ते ढूंढे नहीं जा रहे, खुद आ रहे हैं। लेकिन मुझे और मेरे माँ बाप को कोई जल्दी नहीं है। नहीं, उन्होंने मुझे बताया था, मगर फिर भी मैंने तुमसे बात करना मुनासिब समझा। याद रखना मशल, जब शादी के बारे में सोचो तो सबसे पहले मेरे बारे में सोचना। मैंने उसे संजीदगी से कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। क्या तुम मुझे प्रपोज़ कर रहे हो? हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं यही कर रहा हूँ। चलो सोचेंगे तुम्हारे बारे में भी। उसने अपनी प्लेट में सलाद डालते हुए कहा। बिल्कुल, तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना है। कोई ज़बरदस्ती है? उसके चेहरे पर एक शरारत आमेज़ मुस्कुराहट थी। हाँ, ज़बरदस्ती ही समझो। भाई, अगर प्रपोज़ करना है तो बाकायदा ढंग से करो, उसने सलाद खाते हुए कहा था। बाकायदा प्रपोज़ तब करूँगा जब पाकिस्तान ट्रांसफ़र होगा, उससे पहले नहीं। पहले क्यों नहीं? बस वैसे ही ये लंबी चौड़ी मंगनियों पर यकीन नहीं करता। जब पाकिस्तान ट्रांसफ़र हो जाऊँगा तो 1 माह पहले मंगनी करूँगा और फिर शादी। ये 2-2 साल पहले की जाने वाली मंगनियों में बड़े चक्कर पड़ते हैं, बड़े झगड़े होते हैं, और मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता। मैंने उसे अपनी बात समझाई थी। काफ़ी दूर की सोचते हो तुम? वो मेरी बात पर मुसलसल मुस्कुराती रही। मैं भी जवाब दिए बगैर सिर्फ मुस्कुरा दिया। कुछ देर हम खामोशी से खाना खाते रहे। फिर पता नहीं कैसे महरीन मौजूए गुफ्तगू बन गई, और अक्सर ऐसा ही होता था। महरीन के लिए हमेशा हमारी गुफ्तगू में कुछ ना कुछ गुंजाइश निकल आती थी। हमें पता भी नहीं चलता था और हम उसी के बारे में बात कर रहे होते थे। तुम्हें पता है महरीन आजकल क्या कर रही है? उसने अचानक मुझसे कहा था। मैं अचानक खाना खाते रुक गया। दादी अम्मा पहले उसकी वजह से बहुत परेशान रहती हैं, मगर अब जो वो काम कर रही है उसका उन्हें पता चल गया तो वो घर में तूफ़ान आ जाएगा। मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, मगर सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि तुम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। शायद तुम ही उसे कुछ समझा सको। उसके लहजे में तशवीश थी। क्या कर रही है वो? मैंने परेशान होकर पूछा। उसने नज़रें चुराते हुए कहा, आजकल यूनिवर्सिटी में उसका एक अफेयर बहुत मशहूर है। पिछले काफ़ी अरसों से वो कई लड़कों के साथ फिरती रही, मगर अब काफ़ी अरसे से वो एक लड़के के साथ रह रही है। वो दोनों सारा दिन क्लासेस अटेंड करने के बजाय यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठे रहते हैं या फिर होटलिंग करते रहते हैं। उस लड़की की शोहरत भी अच्छी नहीं है, मगर महरीन को पता नहीं उसमें क्या नज़र आता है। उसकी वजह से मुझे भी बहुत परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आखिर को वो मेरी कज़न है और यूनिवर्सिटी में ये बात सब जानते हैं। मैंने अभी तक ये बात दादी से छुपाई है, हालांकि वो मुझे कहती रहती हैं कि मैं महरीन के बारे में सब कुछ उन्हें बताती रहूँ, मगर मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं उसकी जासूसी करती फिरूँ। इसलिए मैं दादी के सामने तो सब अच्छा है का ढोंग रचाए रखती हूँ, मगर दर हकीकत
मैं दर हकीकत बहुत परेशान हूँ। जल्द या बदेर ये बात घर तक पहुँच जाएगी, फिर वहाँ एक हंगामा बरपा हो जाएगा। मुझे महरीन की फ़िक्र है, उसकी परवाह है, मगर वो ये बात नहीं समझती। प्लीज़ तुम एक बार उससे इस सिलसिले में बात ज़रूर करो, उसने मन्नत भरे अंदाज में कहा था। लेकिन मशल मैं उसे क्या कहूँगा, और फिर हमारी जो थोड़ी बहुत दोस्ती थी वो अब नहीं है। अब तो वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती। मैंने अपनी पोजीशन वाज़े की। फिर भी असवद, तुम उससे बात तो करो। मशल, तुम खुद उससे बात क्यों नहीं करती? असवद, वो कभी भी मेरी बात पर अमल नहीं करेगी। वो तो मुझे अपना दुश्मन समझती है। ठीक है, फिर तुम्हें इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी गलती करे उसे ठोकर लगनी ही चाहिए। अगर उसे खुद अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं है तो तुम या मैं उसे क्या समझाएं? मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, मगर वो मेरी बात पर बिगड़ गई थी। यानी तुम्हारा मतलब है कि हम उसे कुएं में गिरने दें? कम अज़ कम मैं तो ऐसा नहीं होने दूँगी, और मुझे तुमसे बड़ी मायूसी हुई है असवद। मेरा ख्याल था कि तुम इतनी खुदगर्जी नहीं दिखाओगे, और वो भी महरीन के मामले में। ठीक है, मैं उससे बात करूँगा। मैंने एकदम हथियार डाल दिए थे। वो महरीन के लिए परेशान थी, और ये परेशानी मुझे अच्छी लगी थी। और लोग कहते हैं अब दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते। मैंने खाना शुरू करते हुए सोचा था। अगले चंद दिनों में वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ़ रहा और महरीन से नहीं मिल सका। जिस रात मुझे लंदन वापस जाना था उस रात मैं मशल के घर गया था। मशल से मैं एक दिन पहले ही मिल चुका था, क्योंकि उसे अपनी खाला की बेटी की शादी में शिरकत के लिए कोयटा जाना था। नानी अम्मा से मिलने के बाद मैंने उनसे महरीन के बारे में दरियाफ्त किया। अपने कमरे में होगी, इसका कौन सा कोई ठिकाना है? फिर मैं ज़रा उससे भी मिलाता हूँ। हाँ, जाओ मिल लो। मैं ऊपर की मंजिल में चला आया। आहिस्ता से मैंने उसके दरवाज़े पर दस्तक दी थी। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर वह हैरान रह गई। सफ़ेद शलवार कुर्ते में दुपट्टे से बेनियाज, वो कोहनियों तक आस्तीनें चढ़ाए हुए खिलाफ़े मामूल बहुत अच्छी लगी थी। आए अपनी हैरत पर काबू पाते हुए उसने मुझे अंदर आने का रास्ता दिया था। मैं अंदर चला गया। सादा सा बेतरतीब कमरा उसकी अपनी शख्सियत का अक्कास था। कमरे में एक कारपेट बिछा था और उस पर कुशन रखे हुए थे। साइड की दीवार में लगे हुए रैक्स किताबों से भरे हुए थे। कारपेट के ऊपर कोने में कुछ किताबें पड़ी हुई थी और कुछ कागजात और फाइलें भी थीं। कमरे के वस्त में रखी हुई तपाई पर चाय का एक भरा हुआ मग पड़ा हुआ था। दीवारें छोटी बड़ी पेंटिंग से सजी हुई थीं। दीवार के पास रखे हुए स्टेरियो में बहुत मध्यम आवाज़ में कोई इंग्लिश सॉन्ग बज रहा था। मैंने कमरे का तफसीली जायज़ा लिया था। वो इतनी देर में कुशन्स पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठा चुकी थी। अच्छा है तुम्हारा कमरा, काफ़ी अरसे बाद देखा है मैंने। उसने मेरी तबसरे पर काफ़ी किसी रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया। क्या बैठने के लिए नहीं कहोगी? बैठें। उसने एक कुशन उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं आज वापस जा रहा हूँ, सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूँ। कारपेट पर बैठते हुए मैंने कहा। मैं जानता था वो हैरान होगी, क्योंकि पहले भी मैं उसे खुदाफिज़ कहने नहीं आया था। मैंने उसे देखा था और बहुत अचानक हम दोनों की नज़र मिली थी। वो बहुत अजीब सा एहसास हुआ था। उसकी नज़र बहुत अंदर तक उतर जाने वाली थी। ऐसी आंखों को आप आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। मैं जानता था कि वो मुझे देख रही है और मैं उससे नज़र नहीं मिला सकता था। क्या मसरूफ़ियात है तुम्हारी? मैंने बात शुरू करने की कोशिश की। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप जो बात करने आए हैं वही करें? उसका ख़याल गज़ब का था। तुम जानती हो मैं क्या बात करने आया हूँ? मैंने उससे पूछा। मुझे गैब का इल्म नहीं आता, उसने बेतासुर अंदाज में कहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। महरीन, हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और मैं अब भी तुम्हें अच्छा दोस्त ही समझता हूँ। इसीलिए तुम्हें एक नसीहत कर रहा हूँ। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारी इज़्ज़त पर हर्फ आए। तुम बहुत अच्छी हो और मैं चाहता हूँ कि सब तुम्हें अच्छा ही समझें। मैं जानती हूँ मैं अच्छी हूँ और मुझे अपनी अच्छाई साबित करने के लिए आपके या किसी और के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और मैं ऐसा कोई काम भी नहीं कर रही जिससे मेरी इज़्ज़त पर हर्फ आए। उसका अंदाज़ बहुत पुरसुकून था। और ये जो तुम फजूल लड़कों से दोस्ती किए हुए हो वो क्या है? क्या इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैंने बिलाखिर दो टोक बात करने का फ़ैसला कर लिया था, मगर उसके इत्मीनान में रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई। वो खामोशी से मुझे देखती रही और फिर बोली, हर इंसान को हक़ है कि वो दूसरों के बारे में राय दे। ज़रूरी नहीं है कि आपको फजूल लगे, वो मुझे भी फजूल लगे। और मुझे लोगों की काफ़ी पहचान है।